Yeah. Better. You can sit here and help Papa. So, thank you so much, everyone, for joining us with your presence. Harik Shawarani, please come. So, why is it important for us to hear Damodar Leela? So, as Krishna says, that Janma karma cha me divyam evam yogi tatvata tyaktva deham punarjanma naiti mameti sarjana. That by one who knows the transcendental nature of my birth, my appearance and activities, does not upon leaving this body take this birth again in this material world, but attains my eternal abode. So, this is one of the most beautiful pastimes of Lord Krishna, which happened during the month of Kartik, and that is why it is good that we always gather and hear the great pastimes such as Damodar Leela of Lord Krishna. So, Lord Krishna's father, Nand Maharaj, was the owner of around, 900,000 cows, Prabhu. And the maid servants used to, gather all this milk and make various delicacies for Krishna. One day, Mother Yashoda was actually churning butter made from these cows by herself, and while doing so, she was also glorifying the other pastimes of Lord Krishna, as there are many innumerous pastimes. Yeah, and so when she was singing, Lord Krishna came to her, and she could see that Lord Krishna is wanting to be fed. Yeah, he's crying to be fed. Um, in the meantime, she put all those milk in the stove to boil, and she was feeding Krishna while that as well. Um, but when she was feeding Lord Krishna, the milk started to boil, and she kept Lord Krishna there, and she went on to take care of the milk. Krishna became extremely angry because he was hungry, he was getting fed, he was really feeling happy, but she removed him from drinking milk and went other way. So out of that anger, he just that yogurt, that mortar in which this churning was happening, he just broke that mortar where the butter was there, yeah, and ran away, yeah, from there. So when she came, Mother Yashoda saw that mortar is broken. She also saw the footprints, and she went into the other room where the Krishna was feeding monkeys all those butter which she has made. So she became angry, and she started running to catch Lord Krishna. Yeah, it is said that all these monkeys actually were Prabhu from Ramayana, all those monkeys who had supported Lord Krishna. So he could not give him any prasadam. So in this lifetime, he served them this as a prasad. Then, out of the fear, Krishna started to run. Mother Yashoda held the stick in one hand and started to run towards him in order to catch him. And no matter how much he runs, how much he runs, she was not able to catch him. She was perspiring a lot. She was sweating a lot. After seeing that Mother Yashoda is really trying hard, Krishna thought that it is better to get caught. Yeah, so out of his mercy only, she managed to catch him. And then she said that he's really getting very mischievous. Better to bind him into a place so that it is a lesson for him. Yeah. And then she took a rope and she started to bind him. But no matter how much rope she brings in, she's unable to, bind Lord Krishna. And it is always 2 fingers short. Yeah. Every time she take the turn, and it is always 2 fingers short. She's adding more rope into it, but every time it is again 2 fingers short.
So a lot of saints and our gurus have explained this, that this two fingers is one is our effort, our nishtha, yeah, and second is the mercy of the God. So without mercy, we will not be able to bind Lord Krishna, yeah, or maybe the Supreme Lord. And just imagine that greatest of the great yogis, who in their entire lifetime take so much efforts to even take darshan of that Krishna, and that Krishna, out of just pure love and effort by Mother Yashoda, was able to bind him. So this is what the mercy is. Yeah, this is it, Prabhu. And after that, Sant Prabhu, you will add little bit. Please continue. You share. अरे उनको you बांध also तो दीजिए, share. कृष्णा को बांध दीजिए। Prabhu, अरे बांध तो दीजिए कृष्णा को। yeah. So Krishna was then bound by after this Krishna let him bind himself in the wooden mortar which was there, and Prabhuji will now take the Arjun praise. Thank you, Prabhu. Very good. So, Damodar Ashtakam, there is this verse. कुबेरात्मजो बद्धमुतैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भजा कृतौ च. इस वर्स का there is a different perspective also to this verse. So सत्यत मुनि सिंह कि मैं इतना डिवोशन कर रहा हूँ फिर भी then still I am not able to see Krishna, but these two chaps, कुबेरा के बच्चे जो थे नलकुएं मरेंगे, उनको आपका दर्शन हो गया. So what is that? So ये लोग क्या कर रहे थे? They were not devotees, right? So they were just hanging around with their friends. वहाँ पे एक pond में, swimming pool में, तालाब में, they were just swimming around. And then when नारद मुनि came around that way, बाकी जो थे उनके फ्रेंड्स वो आके उन्होंने कपड़े पहन लिए, खुद को ढक लिए. But these two guys, they were because बड़े खानदान से थे, CFO, दुनिया के CFO वर्ल्ड के, तो obviously they had some kind of pride. They were intoxicated. और वरुणी से मतलब दिस इज अपने नॉर्मल ब्रांड्स तो कुछ नहीं उसके सामने. वरुणी इज हाई क्लास, यहाँ पे मिलती भी नहीं है. तो वो पी के सब इंटॉक्सिकेटेड थे. सो व्हेन दे वर इंटॉक्सिकेटेड इन सच वे, और जब नारद मुनि आए, दे फॉरगॉट द ड्यू रेस्पेक्ट. तो देर इज इन वैदिक कल्चर जब बड़े आते हैं तन वी, एंड स्पेशली व्हेन वी हैव सेजेस साधुस, तो हम लोग दंडवत करते हैं, रेस्पेक्टफुल उनको वेलकम करते हैं, उनको रेस्पेक्ट देते हैं. बट देन unfortunately these two guys, they weren't in the right mind, and they were just probably kind of inside offended Narad Muni. तो नारद मुनि रहे डिवोटी. अभी अगर डिवोटी कोई अशुद्ध भक्त when even tries to curse someone, they उनका भला कर देते. तो यहाँ पे उनको कर्ज दिया. The reason for curse was not because Narad Muni was angry, it was because he wanted to correct. उस वक्त तो ऑटो करेक्ट का सिस्टम नहीं था, तो ऐसे करेक्ट करना पड़ता था, कर्ज देके शाप देके करेक्ट करना पड़ता था. तो क्योंकि कुबेर उनके काफ़ी अच्छे मित्र थे, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, सो ही कर्ज दिस नल कुबेर मनिंग्रीवा दैट बिकम ट्रीज. और जैसे कर्ज दिया, दे रियलाइज दैट दे हैव डन सम ग्रेव मिस्टेक, एंड देन दे केम बैक टू देयर सेंसेस. उन्होंने सॉरी, माफ़ी मांगा. एंड डिवोटीज आर कृपालु, दे आर दयालु. तो उन्होंने उनको कहा कि शाप तो वापस ले नहीं सकता, लेकिन आप दोनों जो है नंद बाबा के आंगन में वहाँ पे पेड़ बन के रहेंगे, ताकि आपका जो उद्धार है वो स्वयं भगवान करेंगे. एंड दैट वाज एक्चुअली बून इन डिस्गाइज ऑफ कर्स. तो दीज टू गाइज हु वर नॉट क्वालिफाइड, बट देन बिकॉज ऑफ नारद मुनि, बिकॉज ऑफ देयर लव मात्र साधु संग, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एसोसिएशन विद डिवोटीज, दे बिकेम ट्रीज इन नंद बाबा आंगन. और वहाँ पे जब उनको यशोदा मैया ने बांध के चली गई थी, तब कृष्ण ने उनको याद, अरे मेरे भक्त ने उनको वचन दिया है कि मेरे वजह से उनका उद्धार होगा. इवन दो दे वर नॉट क्वालिफाइड इंडिविजुअली ऑन देयर ओन एफर्ट, बट बिकॉज दे हैड एसोसिएशन ऑफ नारद मुनि, दे एक्चुअली बिकेम वेरी मच क्वालिफाइड. तो उन्होंने मोटर को थोड़ा सा हिला दिया, गिरा दिया, और रेंगते रेंगते मोटर को लेके दो पेड़ के बीच में से अटका दिया, और हल्का सा झटका देके दोनों एकदम बड़े जो कमला अर्जुन पेड़ रहते हैं, ये बनियन ट्री जैसे उनके रूट्स एकदम डीप रहते हैं, एक झटके में दोनों के दोनों पेड़ नीचे गिर गए, ढाप करके जोर से आवाज आया. और बगल में जो नंद बाबा थोड़े से दूर थे, गांव वाले, वो डर गया और वापस और एक राक्षस आया के निकले. सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द इंसिडेंट. उसके बाद वो लोग वृंदावन शिफ्ट हो गए थे गोकुल से. सो देन
यहाँ पे पेड़ में से जैसे उनका उद्धार हो गया, वहाँ से नल कुबेर मनिंद्रिवर बाहर आए और काफ़ी डिवाइन लग रहे थे, उनके गले में फ्लावर सब थे और उन्होंने उनको भक्ति, उन्होंने क्या मांगा जब उनको परिक्रमा में उनको मांगे मुझे हम भक्ति दे दो करके, और कृष्णा ने भी उनको याद दिला दिया कि ये आपके खुद के क्वालिफिकेशन नहीं, आपके गुरु या फिर आप एक साधु के संग में थे, इसलिए आप अभी उस लायक बन गए कि आप मुझे फेस टू फेस देख सकते हो। और ऐसा करके वो जो उन्होंने परिक्रमा करके उन्होंने भक्ति मांग के वो वापस चले गए। सो दिस इज बेसिकली another lesson that we see the devotees love to cherish from this pastime, where the stress is on the association of the devotees। जैसे हम अभी साधु संग कर रहे हैं, तो ये साधु संग भी धीरे धीरे प्रॉब्ली नारद मुनि जैसे जो बड़ा इम्पैक्ट हो वैसा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे चांद पे जब गए थे तो पहला जो स्टेप था दैट वाज थिंकिंग दैट वी हैव टू गो टू मून, राइट। तो ये भी एक छोटा सा स्टेप है दैट वी आर डूइंग साधु संग, एंड देन by the mercy of the sadhus, by the association of devotees, we get the mercy of Krishna, and then by the mercy of Krishna we get more association of devotees, and then with more association of devotees we get more mercy of Krishna, और वो loop चलता रहता है, and then we end up with Krishna in his pastimes, we get the mercy in his service। So with that I want to hand over to Prabhu। Hare Krishna। Sundar Prabhu, you want to add something from the Braj? Prabhu? Sometimes, you know, Vivek Prabhu, you want to add something? No, Prabhu, everything is done by Santosh Prabhu, but I just like to tell you something that as Prabhu said कि जो लवन मात्र का भी संग है, साधु संग, जो डिवोटीज का थोड़ा सा भी संग है, वो हमारे को भगवान की मर्सी दिलवाने के लिए पर्याप्त है। और भगवान खुश तब होते हैं जब आप उनके किसी डिवोटी की, किसी भक्त की सेवा करो। भगवान उससे भी ज़्यादा प्रसन्न तब होते हैं, अपनी सेवा से ज़्यादा प्रसन्न तब होते हैं जब उनके किसी भक्त की आप सेवा करें। वी आर नॉट कैपेबल टू गेट द मर्सी ऑफ कृष्णा डायरेक्टली। ये बहुत बड़ी एक पावर है, बहुत बड़ी एक मर्सी जो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। सो इट हैज़ टू बी फिल्टर्ड अकॉर्डिंग टू आवर कैपेबिलिटीज। सो प्रभुपाद इज देयर, ही इज फिल्टरिंग ऑल दोस मर्सी एंड बेस्ड ऑन आवर कैपेबिलिटीज ही इज जस्ट रिलीजिंग दैट। धीरे धीरे जैसे हम कैपेबल होते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी और बढ़ती जाएगी। बट वो इंटेंसिटी बढ़ेगी कैसे? वो सिर्फ नाम जप इस कलयुग का सबसे बड़ा एक ईजीएस्ट वे है। सम पीपल से सतयुग जो है वो बहुत पायस था, कलयुग पायस था, त्रेतायुग पायस था, द्वापर पायस था। बट ऐसा आचार्य का कहना है कि कलयुग इज़ द ईजीएस्ट वे टू फाइंड द गॉड। भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका कलयुग में है, क्योंकि ऑस्टेरिटीज़ आप जब करते थे सतयुग में तो आपको हज़ारों साल तपस्या करनी पड़ती थी। उसका एग्जाम्पल है हिरण्यकश्यप को हमने देखा 10,000 साल उसने तपस्या की, तब जाकर उनको ब्रह्मा जी प्रकट हुए। त्रेता में आपको ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे और यज्ञ के बेसिस पे भगवान उनको अपनी मर्सी देते थे। द्वापर में अर्चन विग्रह करते थे, तब उसके बेस पे भगवान अपनी मर्सी देते थे। बट अभी कलयुग में ना तो हमारे पास इतनी आयु है कि 10,000 वर्ष हम तपस्या कर सकें, ना हमारे पास यज्ञ हेतु एक एक शुद्ध सामग्री होनी चाहिए वो नहीं है, सब चीज़ में मिलावट है। अर्चन विग्रह की विधि हम पूर्ण रूप से जानते नहीं हैं। तो भगवान ने सबसे शॉर्टेस्ट तरीका इस कलयुग में रखा नाम जप का। सो जस्ट बाय मीरिंग चेंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड यू कैन अटेन हिज मर्सी एंड गो बैक टू द गॉड हेड। सो उस दिन मैं प्रभु जी को बोल रहा था, प्रभु जी बोल रहे थे गो लोग, तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक किया, गो इंग्लिश वाला गो और हिंदी वाला लोग, कि वो लोग जहाँ हमें जाना है, गोलोक। तो गोलोक वो है जहाँ हम सबको जाना है, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से जो हम बंधे हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, उससे हमें पार पाना है। अब दामोदर मंथ की बात करें तो ये मंथ भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय क्यों है? भगवान गीता में बोलते हैं कि मार्गशीर्ष मंथ में सबसे ज़्यादा मार्गशीर्ष मंथ में हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय ये महीना है। कोई बताना चाहेगा क्यों उन्हें ये प्रिय है सबसे, यह महीना सबसे ज़्यादा? जी बिल्कुल, ये राधा रानी का सबसे फेवरेट मंथ है, इसलिए भगवान को ये मंथ बहुत ज़्यादा प्रिय है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दामोदर अष्टकम और गोपी गीत का हम डेली हमें पाठ करना चाहिए। जो दामोदर अष्टकम है वो सत्यव्रत मुनि ने बोला था पद्म पुराण के अंदर, तो ये वहाँ से लिया गया है। और गोपी गीत भगवत पुराण में से, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में से 10th कैंटो के 31st चैप्टर में से वर्स नंबर 1 to 19, जो गोपियों ने भगवान की विरह में गीत गाया था,
और वो गीत तब गाया था जब भगवान शरद पूर्णिमा के दिन एकदम से अंतर ध्यान हो गए थे। सो उनकी विरह में जो गोपियों ने गीत गाया था, इफ़ यू लिसन टू दैट गीत एंड उसका जब ट्रांसलेशन देखेंगे, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। और उसका अगर आप उसे ऐसे लव सॉन्ग भी देखेंगे ना, जो सेपरेशन का सॉन्ग है, जो उसमें विरह है गोपियों की, वो गोपियों का प्रेम तो सबसे उच्च लेवल का प्रेम माना गया है। तो इसमें हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें रोज़ दामोदर अष्टकम और गोपी गीत, और फिर हम भगवान को दीप अर्पण करें। ऐसा बोलते हैं कि इस महीने में अगर भगवान को आप दीप अर्पण करते हैं, जो भी आप चीज़ करते हैं, तो अगर आप एक नाम ले लें तो उसका मल्टीपल टाइम्स आपको उसका फल मिलता है। तो जैसे वो सेल चलती है दिवाली में ना, कि इतने में इतने ले लो, इतना में इतना ले लो, तो ये उस टाइप से है कि आप एक नाम लोगे तो आपको 1000 नाम का फल मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग डेली दीपदान कीजिए, डेली चैंटिंग कीजिए, और उसके साथ आप दामोदर अष्टकम और गोपी गीत का पार्ट भी अपने डेली रूटीन में एटलीस्ट इस मंथ के लिए तो ऐड कीजिए। एंड विद दैट, हरे कृष्णा एंड प्रभु जी, ओवर टू यू। Very good. Can I request everybody to come front, please? बहुत जगह है, प्लीज आगे आ जाइए।